medical report has now been accessed by Times Now. Now, this reveals the sheer brutality this 24-year-old Angel Chakma was subjected to. He suffered bleeding in the brain and there were injuries in the spinal cord as well. There was a 3-centimeter deep wound on the back. The medical report also mentions injury above the neck caused by a blunt object. Angel also lost the function in the right side of his body. And we have some breaking inputs coming in at this point in time. Tripura student was killed in Uttarakhand. NHRC, the National Human Rights Commission, has taken note of this particular incident, and NHRC has also issued a notice to state government, and the state has been asked to also ensure safety of all the students from northeastern states. Listen in. We have received a complaint regarding this serious incident. We have issued notice to DM and SP of the Dehradun district of Uttarakhand and sought a report regarding this particular case. Also, we have issued notice to DGP and Chief Secretary of Uttarakhand to ensure safety and security of the students living there, residing there, studying there, and are from northeastern states. We are observing the case. Whenever we receive a report, we will comment on the findings of the report. And is there any time that has been given by? We have given a 7 days time window to them. Now, viewers, the stabbing incident took place on 9th of December, but Angel succumbed to injuries 14 days later. 5 of the accused have been arrested, and hunt is currently underway to nab the 6th accused in this case. Uttarakhand Chief Minister has assured that strictest possible action is going to be taken. जो 6 हत्या के आरोपी हैं, उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। Let's now move on, viewers. And the family of Angel Chakma has stepped up its demand for justice. The family is now seeking a CBI probe into the killing. Family has submitted a 6-point charter to a Tripura minister calling for action against the neurosurgeon who was treating their son, and alleging the family, in fact, has also alleged medical negligence at the Graphic Era Hospital. They've also demanded immediate arrest of 6th accused and equal punishment for everyone who was involved in this brutal crime. The family, in fact, has also questioned the motive behind the brutal attack and claimed the case involves racial targeting. An appeal has also been sent to Union Home Minister Amit Shah, seeking his intervention into the matter. So this is the latest update that we are getting for you. The family of Angel Chakma, after losing their son in this brutal incident, is now demanding a CBI probe into this matter. Remember, the cops are now trying to suggest that there was no racial angle, no racial hate involved as far as this particular incident is concerned. But we have also, got details of the medical report that also reveal the kind of brutality that really took place. Let's go across to my colleague Kritika, who's joining us live right now for more on this. Kritika, family is clearly devastated, and it's quite understandable as well. And family is now demanding a CBI probe into the matter. Give us more details. Well, yes, this is what they have written to the Tripura minister. They're clearly unhappy with the way the investigation is unfurling here in Dehradun by the Dehradun police as well. They've demanded that a CBI investigation should then be handed over, or an SIT should be set up within 2 days if the delay on part of the Uttarakhand police continues. The demand is also to get the immediate arrest of the 6th absconding, the Nepali resident who is yet absconding as far as the police is concerned, as far as police action on this front is also concerned. They've also demanded, in fact, action to be now taken or initiated in against Payos Pandey, the neurosurgeon of the Graphic Era Hospital, where Angel was receiving treatment from the 9th of December, the day of the injury and the assault, till 26th December, where he ultimately and unfortunately died, succumbing to his spinal and brain injury. Now remember, the family is also asking for
the ensuing court case also to now be transferred to Delhi, because that is the extent of their loss in faith as far as the Uttarakhand government is also concerned. There is also yet no announcement of any sort of a compensation. Yesterday when we were speaking to the Northeast Student Association, they have also pointed this out. So of course there's a lot of anger against the Uttarakhand government, a lot of anger against the police operations as well, as far as the investigation into the death of the Angel Chakma is also concerned. Remember, there are still motives that the family also would like to know. They're saying that they're also now questioning. Kritika, I'm just interrupting you there. Request you to please stay on with us. We have Moben Chakma, victim's uncle, joining us on the broadcast as well. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. Can you tell us what exactly are you now demanding from the government? आप हमें बता सकते हैं कि अभी जो है आपकी क्या मांगे हैं, जो अभी हमें पता चला है कि आप सीबीआई की जांच की भी मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? हाँ जी मैडम, हम लोग ने तो उधर पॉइंट पे तो दिया है। हम लोग चाह रहे हैं मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट को या उत्तराखंड पुलिस को एज वो लोग केस को डायल्यूट करना चाह रहे हैं। वो तो फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली दे आर ट्राइंग टू डायल्यूट द केस। मतलब वो लोग तो पूरा सपोर्ट भी नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग तो लोकल नहीं है ना, हम लोग तो चाइनीज है, मोमो है, तो एक्चुअली वो तो है ही है। हम लोग तो चाइनीज है, मोमो है, हम लोग मोमो खाते हैं, तो हम लोग तो मतलब दे आर नॉट सपोर्टिंग अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द केस ओनली। जैसे कि माइकल और उसका दोस्त पहले मतलब आफ्टर द इंसिडेंट नेक्स्ट डे वो लोग चले गए थे पुलिस स्टेशन में, मतलब कुछ मतलब एफआईआर वगैरह देने के लिए। वो लोग ने तो पूरा मना कर दिया, सीधा बोल दिया, मुंह पे ही बोल दिया, तुम लोग का जैसा तो हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग तुम्हारा केस तो क्यों देखेंगे, जाओ यहाँ से करके भगा दिया ना। तो उसके बाद मतलब अभी तो पुलिस तो मतलब इतना दिन भी लगाया एफआईआर लेने के लिए, तो हम लोग तो पूरा मतलब दे आर सपोर्टिंग देयर लोकल्स। तो हम लोग का यही डिमांड है, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट या उत्तराखंड पुलिस को जो भी है, जो ऑफिसर उसको हैंडल कर रहा है केस को, उन लोग को अगर कुछ मतलब टाइम फ्रेम दिया जाए, जैसे कि 2 डेज 3 डेज, उसके अंदर अगर उन लोग से नहीं हो पाएगा तो बेटर है वो लोग सीबीआई को सौंप दे, नहीं तो एक एसआईटी फॉर्म करके दे देना हम लोग को। हम लोग तो जैसे कि हम लोग तो चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके जस्टिस हो जाए, क्योंकि आज यही न्यूज़ चल रहा है, कल दूसरा न्यूज़ आएगा, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो जब तक मतलब जितना भी डिले हो जाएगा उतना केस तो नरम होता जाएगा ना मैडम। तो अभी तो मतलब जितना जल्दी हो सके उसको मतलब जस्टिस दिलाना है हम लोग को, उसका आत्मा को शांति मिलना चाहिए। हम लोग को अभी जस्टिस चाहिए एनी हाउ। जी बिल्कुल, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट रियली हैपेंड विद एंजल, एंड बिल्कुल ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हम समझ सकते हैं कि अभी आपके पूरे परिवार की क्या स्थिति भी है, लेकिन अभी जो हुआ है इस पूरे केस में, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अगर आप लोग रियली चाहते हैं ये दूसरों के साथ नहीं हो, और हम लोग का ये सिर्फ एक ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। 2014 में अरुणाचल का एक लड़का को मार दिया, उसका बाल बरा है, नाक छोटा है करके, आँख छोटा है करके। तो यही राइट टाइम है गवर्नमेंट को टफ डिसीजन लेने के लिए। और कितना लोगों को जान देते रहेंगे हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट का लोग इंडिया के लिए इतना लॉयल है, इतना के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बदले में हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग का बच्चा का जान देना पड़ता है ना उल्टा। तो ये राइट टाइम है गवर्नमेंट को एक टफ डिसीजन लेना है। से एक्यूज जो है उन लोग को पूरा कैपिटल पनिशमेंट जितना बड़ा हो सके देना, ये नहीं 4-5 साल के बाद छोड़ दिया। ये तो एक गलत मैसेज जाएगा ना दूसरे लोगों को। मतलब वो लोग सोचेंगे अरे एक लड़का को मार के अगर हम लोग 5 साल में बाहर आ सकते हैं जेल में, तो एवरी टाइम मारेंगे हम लोग, और एक को मार के और जाएंगे 5 साल, फिर वापस आएंगे, फिर मारेंगे, ऐसे तो होते रहेगा ना। तो इन लोग को पूरा छोड़ना नहीं है, इन लोग का मतलब लाइफ टाइम प्रिजन होना चाहिए, नहीं तो हैंग होना चाहिए इन लोग को। हम लोग यही डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट को। जी, और मोबिन चकमा जी, आपने जो न्यूरो सर्जन एंजल को ट्रीट कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग की है? एक्शन मतलब हम लोग इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि मैं खुद था वहाँ पे हॉस्पिटल में जब उसका उसका सर्जरी का होने में, तो आफ्टर द इंसिडेंट ही चला गया था देहरादून, ठीक है। तो मैं डॉक्टर से जाके पायुष पांडे है उसका नाम, मैंने उसको पूरा पर्सनली भी मिला था मैं, मतलब क्या स्थिति है हम लोग का पेशेंट को। मतलब हम लोग तो पहले चाहते थे उधर नहीं कराए, क्योंकि उधर तो रिक्स है, लोकल के इंस्पॉल्स में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग चाह रहे थे उसको दिल्ली में मूव करने के लिए। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा बोला ठीक है, वो रिक्स नहीं दे रहे थे, मतलब रिक्स मतलब उसका वो तो सच ही बोल रहे थे, मतलब कुछ हो सकता है बीच में, कुछ हो जाएगा तो उन लोग का कुछ अथॉरिटी का वो नहीं रहेगा, मतलब ब्लेम नहीं रहेगा। तो मेडिकल एडवाइस जो वो कहते हैं। तो हम लोग ने
मतलब सोचा ठीक है दिल्ली से तो देहरादून तो दिल्ली से बहुत दूर है, बाइक कार लेके जाएंगे, गड्ढा भी है बीच में, तो कुछ हो जाएगा तो हमारा, और इसलिए हम लोग ने राजी भी हो गया था, मतलब यह भी करेंगे हम लोग सर्जरी। तो उसने जब मिला था, मैं पर्सनली जब डॉक्टर से मिला था, उसने पूरा बोला था मुझे, मतलब एंजल का जो इंजरी है बहुत रेयर जगह में हुआ है, चोट जो आया है एंजल को वो बहुत रेयर जगह पे उसका पार्ट पे हुआ है वो, और कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी होगा, मुझे खुद बोला था उसने कॉम्प्लेक्स सर्जरी होगा। मेरे साथ और 2-3 थे, डॉक्टर ने खुद बोला था कॉम्प्लेक्स सर्जरी होगा, ये बहुत रेयर सर्जरी है, मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। तो ठीक है आप लोग अगर हैंडल कर सकते हैं तो कीजिए। तो उन लोग ने हम लोग को पैसा भरने के लिए बोला, 2 सर्जरी होगा उसका, एक नेक पे होगा, एक बैक पे होगा, स्पाइन में 2 सर्जरी होगा एक साथ। ठीक है कराइए आप लोग, हम लोग ने पैसा भी जमा किया। तो आफ्टर देखा गया कि आफ्टर द ऑपरेशन एंजल ठीक था, एक दिन बात कर रहा था, तो नेक्स्ट डे से उसका पूरा मतलब हेल्थ पूरा खराब हो गया था, मतलब रात को कॉल कर रहे हैं वो, आप लोग का तो मतलब वो है, मतलब क्या है, आप लोग का पेशेंट का पूरा इमरजेंसी हो गया, बहुत सीरियस कंडीशन में, पूरा बात नहीं कर पाता वो। तो बाद में पता चला क्या ये डॉक्टर सर जो है वो आफ्टर द इतना क्रिटिकल सर्जरी होने के बाद वो लीव पे चला गया। ओके, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुआ है? मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है मैडम उसके साथ, और उसको शायद ज्यादा भी वो क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब जो दवाई दे जाता है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो भी मतलब उसको सुलाने के लिए जो दवा देता है वो भी ज्यादा दिया होगा शायद उन लोग ने, मतलब सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो वो लोग तो मतलब नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी भी है डॉक्टर का, मतलब हम लोग उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं मतलब उसका भी कुछ एंगल होगा तो उसको भी खुलासा किया जाए। ठीक है, हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग उसको इसलिए किया करके हम लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब हो भी सकता है जी। ओके, और मेन थिंग यही है, मतलब जो एक्यूज्ड है 5 एक्यूज्ड, उसका मम्मी भी एक मदर है, उसको सेम हॉस्पिटल में, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भी काम करता है। ये बात मुझे उधर पता चला जब हम लोग एंजल को देखने गए थे। एक आके मतलब एक रैंडम पीपल आके हम लोग को बोलते हैं जो 5 एक्यूज पकड़ा है पुलिस में, उसमें से एक मम्मी यहाँ पे काम करती है, वो आप लोग से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो शर्म के मारे में नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका बेटा ने आपका बेटा को मार दिया, इसलिए हमला कर दिया, इसलिए वो शर्मा रहा है। वो जब एंजल ठीक होगा तब आके मिलेगा, ऐसा भी एक बोल के गया था। तो ये जो सारे अभी चीजें आपने हमें बताई हैं, इसकी वजह से आप चाहते हैं कि एक सीबीआई प्रोब हो, नहीं तो कोई एसआईटी बिठाई जानी चाहिए इस पूरे मामले की जांच के लिए। यू आर आल्सो टेलिंग अस दैट वन ऑफ द एक्यूज्ड मदर आल्सो यूज्ड टू वर्क in Graphic Era Hospital where Angel was being treated. Thank you very much, Momin Chakma ji, हमसे बात करने के लिए, and we really hope your demands are met, and family is clearly now demanding from the government that there should be a CBI probe into this matter, because they are also saying perhaps there was some kind of medical negligence as well as far as the Graphic Era Hospital is concerned. Thank you very much, Momin Chakma, for speaking with us here on Times Now. And viewers, even as the probe is in its early stages, the hunt is still underway for the 6th accused in this case. Cops have completely denied the racial attack angle, saying one of the accused was from Manipur. But opposition is asking why jump the gun when the probe is still underway. They're also questioning the alleged delay in the filing of FIR. कोई रेशियल रिमार्क्स है, चूंकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी आई है, ये हमें समझना जरूरी है कि जो दूसरी तरफ से जो अक्यूज है वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड थे। उसमें एक जो अक्यूज है वो मणिपुर का रहने वाला था और सेकंड वन इज नेपालीज ओरिजिन। तो रेशियल रिमार्क्स की बात नहीं है, एक तरफ से एक पक्ष जो था वो आपस में कमेंट कर रहे थे, आपस में जैसे कहते हैं कि चूंकि इसमें 2 अंडर एज थे, और उस कमेंट में आपस में कमेंट को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो सेकंड पार्टी जो भी अग्रीड पार्टी है उनको लगा कि उनके लिए किया जा रहा है। And now what we are witnessing is more reactions coming in from the opposition. Congress party, in fact, has dragged RSS as well into Chakma killing. Congress's hate being injected attack at RSS. This is what we are seeing coming in from Congress MP Manikam Tagore. Listen in. Well, this attitude of the SSP is of deep concern. We have also heard that there was a delay of 12 to 13 days in registering the FIR in the death of Angel Chakma. You think that free? I would urge the state police to first find the main accused before jumping to conclusions.
Union Minister Kiran Rijiju has also reacted to this alleged cover-up attempt, calling it shameful if it was indeed at play. It is a matter of grave concern for all of us. It's not a matter only for Northeast. And don't treat such incident as a law and order or one of the incidents. There's a huge mentality issue. Police will have to act promptly. If police tries to, cover up, then it will be quite unfortunate. Now, viewers, the brother of the victim who was present at the spot at the time of the incident reveals the entire sequence of events. He mentions that the group had hurled racial abuses at them. When they confronted the group, they were attacked in return. हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने, तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या गाली क्यों दे रहे हो, तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को तो मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। Let's now move on, viewers.